Hello everyone, welcome back to class 8 series on my channel Mathify with Meenakshi. In the previous video, we have completed chapter 1, a square and a cube. And now in this video, we'll start chapter 2, power play. But before we begin, I have an important update for my students that many students suggested that the videos would be easier to understand if they were bilingual to make learning more effective and enjoyable. But before starting the very important definition, I want to ask one thing from you that what is repeated addition? I will give you one example too. Suppose I will ask that if I have to add 3, let's say 10 times. So here 3 is coming 10 times. So what will be your answer? जब आप छोटे होगे तो you used to do like this कि 3 plus 3 6 हो गया, 6 plus 3 9. ऐसे हम 3 को 10 times add करते थे. But when your teacher introduced you the concept of multiplication, तो उन्होंने बताया होगा that जब कोई चीज़ बार बार सेम नंबर को हम ऐड करते हैं खुद से, so हम उसे multiplication भी कह सकते हैं. In short, you can say कि 3 10 times आ रहा है, so 3 को 10 से multiply कर दो. That means 30. So we can say that repeated addition is nothing but multiplication. So we are already familiar with this. Now, what if I will ask that what is repeated multiplication? Like if I will ask that you have to multiply 3 5 times. So what will be the answer? So you can say that 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81 and 81 into 3 243. बट इतना बड़ा हमें लिखने की ज़रूरत है 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स अगर मान लो 3 को हमें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो व्हाट आई विल राइट 3 इंटू 3 इंटू 3 10 टाइम्स नो इन शॉर्ट यू कैन सिंपली रिप्लेस दिस विद exponents you can write 3 is coming 5 times so हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 raised to the power 5 जहाँ 3 जो बेस होता है वो नंबर होता है जिसे आप बार बार लिख रहे हो और कितनी बार लिख रहे हो दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज एक्सपोनेंट so exponent means when you multiply same number with itself. So let's move to the definition now. Exponent, repeated multiplication as we just discussed, it indicates the number of times a multiplication is performed. Like 3 raised to the power 4. Here, how we'll read this? We'll read this as 3 raised to the power क्योंकि 4 ऊपर है so raised to the power 4. And what is the meaning of 3 raised to the power 4? That you are writing 3. आप 3 को कितनी बार लिख रहे हो? 4 बार क्योंकि 4 ऊपर है. So that will always show you number of times you are multiplying the number. So 3 raised to the power 4 is 81. You can check 3 into 3 9, 9 into 3 27 and 27 into 3 81. So if in future you want to ask from someone कि अगर आप 3 को अपने आप से 10 times multiply करोगे so instead of writing question like this कि आप 3 को 10 times लिखो आप in short directly पूछ सकते हो what is 3 raised to the power 10. So exponent हम कैसे बहुत बड़े बड़े numbers और छोटे numbers को easily लिख सकते हैं उसके लिए होता है. So now let's move to laws of exponent. It's very important topic. So here I've used some variables जैसे आप देख सकते हो a and b and m and n. So here a and b can take all the real numbers. आपको पता होगा रियल नंबर सारे नंबर्स हो सकते हैं लाइक इंटीजर्स रैशनल इरेशनल्स पर m और n जो है जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं वो अभी हम केवल इंटीजर्स ही पढ़ेंगे. यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इंटीजर्स. इंटीजर्स मीन्स whole numbers and negative of whole numbers. So let's deduce first law. I don't want to directly tell you the law first. I want आप पहले law समझो आया कैसे. So let's see example first. Like if someone will say that you have to multiply 3 raised to the power 4 with 3 raised to the power 3. क्या मतलब है इसका? That means 3 raised to the power 4 means that you are multiplying 3 4 times. Okay. ये हमने लिख लिया 3 raised to the power 4. उसके बाद बीच में एक multiply का sign है and then they wrote 3 raised to the power 3. That means then you have to write 3 times. Yes. Now if you will see carefully इसका in short क्या मतलब है that you are multiplying 3 how many times 1 2 3 4 5 6 7. That means कि हम और कुछ नहीं कर रहे हैं जो इसका एक्सपोनेंट था that's 4 and जो यहाँ एक्सपोनेंट है that's 3. So we are just adding the exponents 4 plus 3. So that's the law that if your base is same ध्यान से देखना है आपको यहाँ base same है
जो नीचे नंबर है वो सेम है। अगर कभी भी आपका जो नीचे नंबर है वो सेम होता है एंड एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, देन बीच में जब भी मल्टीप्लाई का साइन होगा यू विल जस्ट राइट द बेस एज इट इज ओनली वन टाइम, और जो आपके एक्सपोनेंट्स है आप डायरेक्टली उनको ऐड कर दोगे। बहुत ध्यान से देखना है दैट हेयर वी हैव अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई, एंड जब वो एक्सपोनेंट्स में आया तो वो प्लस बन गया। सो मल्टीप्लाई क्या बन जाता है? एडिशन। Now let's deduce second law. If someone will say that 4 raised to the power 5, that means 4 is coming 5 times, divided by 4 raised to the power 2, that means 4 is coming 2 times. अब हम सबको पता है that we can cut this 4 and this 4. We can cut any two 4s from numerator and denominator. So we are left with 4 raised to the power 3. हमारे पास 3 4 बच गए हैं। अब जरा अपना लॉ देखते हैं। a raised to the power m divided by a raised to the power n, क्या हमारे साथ भी यही हुआ? 5 minus 2 is 3, because डिनोमिनेटर के जितने भी आपके फोर्स होंगे वो कट हो जाएंगे। सो यू विल सिंपली से दैट इफ बेस इज अगेन सेम बट यू हैव अ डिविजन साइन नाउ इन बिटवीन, सो आप क्या करोगे? यू विल डायरेक्टली सबट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। डिविजन के केस में हम एक्सपोनेंट्स को सबट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में एडिशन। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड लॉ. Third law is that if your exponent is same, that means you are multiplying 5 3 times and you are multiplying 2 also 3 times. So you know this thing that हम पेयर भी तो बना सकते हैं, 5 और 2 का वन पेयर, 5 और 2 का सेकंड पेयर एंड 5 and 2 का नेक्स्ट पेयर. इन शॉर्ट वी कैन से कि 5 into 2 तीन बार आ रहा है, yes, and that means 10 cube. So law is whenever your exponent is same, see here m and m, exponent is same, this time my base is different. So what you can do, you can take that exponent common. हम ब्रैकेट लगाते हैं कॉमन के लिए, आप उसे बाहर लिख सकते हो एक्सपोनेंट को, एंड इनसाइड यू विल राइट एज इट इज व्हाट यू आर लेफ्ट विद, लाइक a इंटू बी, जो भी बच गया आप उसे नीचे लिख दोगे, a इंटू बी रेज टू द पावर m, एंड फर्दर यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई a एंड b और आप उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लाइक आई डिड 5 इंटू 2 इज 10, 10 का क्यूब, एंड यू नो 10 क्यूब इज 10 इंटू 10 इंटू 10, so directly you can write 1000. I want to tell you one thing, 10 raised to the power n means 1 के बाद आपके कितने zeros आएंगे? n zeros आएंगे. So ये डायरेक्ट होता है. So अगर कोई बोलेगा 10 raised to the power 3, that means 1 के बाद 3 zeros है, you can say 1000. Okay, similarly if I will replace this multiply sign with division, exactly सब कुछ same है third और fourth में, that means your exponent is again same, बस इस बार multiply की जगह क्या आ गया? divide. तो आप again same चीज करोगे, you can take your exponent common and you will divide the base. Let's see the example, like 15 raised to the power 4, 15 हमारे पास 4 है and 3 भी हमारे पास 4 है. सो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो 15/3, 15/3, 15/3 एंड 15/3. बेसिकली वी कैन से कि 15/3 4 टाइम्स आ रहा है. सो वही यहाँ पे हम करते हैं, व्हेन योर एक्सपोनेंट इज सेम आप उसे एक बार बाहर लिख देते हो और नॉर्मली बेसिस को डिवाइड कर लेते हो. सो योर आंसर इज, इफ यू विल कट दैट, you will get 5 raised to the power 4. Yes, let's move to next law. Fifth law, a raised to the power 0 is 1. That means if you have any base, कोई बोले आपको आपने 3 को 0 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई करा तो क्या आंसर आएगा? Now you are thinking ये क्या मतलब हुआ? Let's see one example. If someone will say what is 3 raised to the power 1, you will say that means 3 को खुद से एक बार मल्टीप्लाई करना है, that is 3. When someone will say 3 raised to the power 2, तो आपको पता है इसका मतलब है 3 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3, that's 9. If someone will say 3 cube, that means 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3 into 3, that is 27. So what we are doing here, when we are moving right, we are increasing the exponent. तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, like into 3 into 3 and so on. अब अगर हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? लाइक अगर हम 9 से 3 पे आए, देन व्हाट वी आर डूइंग? 27 से 9 आए, वी आर डिवाइडिंग बाय 3. जब हम एक्सपोनेंट कम कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर कोई आपसे बोलेगा 1 से एक एक्सपोनेंट कम करो, दैट इज 0. सो अगर हम लेफ्ट जा रहे हैं तो हम क्या करें? डिवाइड बाय 3. सो इफ इट इज 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. If someone will say what is 3 raised to the power minus 1, अगेन आप एक और बार डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर 1 था, यू विल डिवाइड बाय 3. इफ समवन विल से व्हाट इज 3 रेज़ टू द पावर माइनस 2, आप इस आंसर को एक और बार डिवाइड कर दोगे 3 से, दैट मीन्स अगेन 1/9.
सो आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट कि जब हम राइट पे जा रहे हैं, जब हम एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका मल्टीप्लाई होता है, और जब हम एक्सपोनेंट को डिक्रीज करते हैं वन स्टेप, सो आपका डिवाइड होता है. And by this example, you can see that anything raised to the power 0 is always 1. So minus 7 raised to the power 0, again it's 1. Anything, if it's integer, it's whole number, it's rational, it's irrational, कुछ भी हो, अगर उसकी exponent 0 है तो आपको directly answer 1 लिखना है. Here also minus 5 upon 4 raised to the power 0, you will again write 1. Let's move to next law that I've just explained if you have seen carefully. A raised to the power minus n. अगर किसी की पावर नेगेटिव में, लेट्स सी हियर, लाइक जैसे एग्जांपल में हमने देखा 3 रेज टू द पावर -1. जरा ध्यान से देखो क्या आया था, 1/3. हमारा 3 रेज टू द पावर -2 क्या आया है, 1/9. डिड यू ऑब्जर्व समथिंग? यस, दिस कैन बी रिटन एज 1/3 स्क्वायर. इसका मतलब अगर हमारा एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे. कैसे? विल सिंपली टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बेस एंड चेंज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट. हम साइन चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंट का, चेंज साइन ऑफ एक्सपोनेंट. बट द कंडीशन इज दैट अगर आप एक्सपोनेंट का साइन चेंज करोगे, सो आपको जो भी आपका बेस है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो दिस इज द लॉ. ये आया कैसे है वो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल से समझा दिया है. सो इफ समवन विल से व्हाट इज 5 रेज टू द पावर -2, हमारे लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम 5 को -2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स कांट बी नेगेटिव. इसलिए हम हमेशा -2 को रिप्लेस करते हैं विद पॉजिटिव. सो हम इसे लिखेंगे 2. एंड अगर आप एक्सपोनेंट का साइन चेंज करोगे तो आपको पता रहना चाहिए दैट यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बेस. तो ये बन जाएगा 1/5 स्क्वायर, और उसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 5 का स्क्वायर इज 25. सो दिस इज योर आंसर. अगेन इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, आप उसको पहले पॉजिटिव बनाओगे, यू विल राइट 3. बट देयर इज अ कंडीशन टू मेक इट पॉजिटिव. आपको जो भी आपका बेस है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. जस्ट लीव दिस माइनस साइन एंड 7/4 बन जाएगा 4/7. क्लियर? दैट मीन्स हमारा एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. जब भी आपको एक्सपोनेंट नेगेटिव दिखेगा, आप हमेशा उसे पॉजिटिव बनाओगे by taking the reciprocal of base. Here you can solve this further if you want. You know this thing that minus raised to the power odd. ये next law यहाँ पे मैं आपको 8 समझा देती हूँ. Whenever we have a negative sign or exponent odd होता है, that means minus is coming odd number of times. And you know when minus is coming odd number of times, तो हमारा sign final sign minus ही होता है. Example, -3 into -3 into -3. आप क्या बोलोगे? माइनस माइनस इज प्लस, plus minus is minus, that is minus. 3 into 3 9, 9 into 3 27. So whenever your exponent is odd, you will say that my minus sign will come out of the ब्रैकेट. सो वैसी जैसी आपका 3 जो आपका एक्सपोनेंट है, जब भी आपको ऑड दिखे, आप माइनस का साइन पहले ही बाहर लिख दिया करो. अब बचा 4/7 का क्यूब. जस्ट टेक द क्यूब ऑफ न्यूमरेटर. 4 का क्यूब, 4 4 16, 16 4 64, एंड 7 का क्यूब, 7 7 49, and 49 into 7 is 343. Now let's move to seventh law. That means, like example, 3 raised to the power 4 and again raised to the power -5. That means power raised to the power. So what we'll do in this case, we have to simply multiply the exponents. That means 3 raised to the power 4 into -5, and that is 3 raised to the power -20. Although you can again see that the exponent is negative, so you can change that to positive, but the condition is आपको जो भी आपका बेस है उसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा. बट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती, लाइक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस ब्रैकेट का. लाइक अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता 3 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3, और एक तरफ ये क्वेश्चन होता 3 रेज टू द पावर 2 ब्रैकेट रेज टू द पावर 3, दोनों का मतलब अलग है. जो हमारा लॉ है वो ये वाला है, ब्रैकेट वाला. वहाँ पे ये होता है दैट यू कैन मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स. सो यू कैन राइट 3 रेज टू द पावर 2 into 3, दैट मीन्स 3 रेज टू द पावर 6. लेकिन जहाँ हमारे एक्सपोनेंट रेज टू द पावर एक्सपोनेंट होता है बट ब्रैकेट नहीं होता, इसका मतलब पहले आप 2 रेज टू द पावर 3 को सॉल्व करोगे. And what is 2 raised to the power 3? That is 2 into 2 into 2, that is 3 raised to the power 8. So you realize this thing that bracket is how much important in this case, है ना. तो ब्रैकेट लगाना आपको बहुत ध्यान से यहाँ पे पड़ेगा, बिकॉज अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये अलग आंसर आ सकता है. So from this we can say that a raised to the power m raised to the power n means that you will simply multiply the exponent. आप डायरेक्ट
डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना, बस कंडीशन क्या है, ब्रैकेट होना चाहिए। इन 8th क्लास दे विल गिव यू ब्रैकेट, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट लॉ। अगर आपको ये दे रखा है दैट a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, दैट मीन्स बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, एंड दे आर सेइंग व्हाट अबाउट द एक्सपोनेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट भी सेम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, 4 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर x। जैसे आपने देखा कि मेरा बेस तो सेम है, जैसे आपको बेस सेम दिखेगा ऑटोमेटिकली यू कैन से दैट योर एक्सपोनेंट इज सेम, बिकॉज इन बिटवीन वी हैव अ इक्वल साइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो यू विल से दैट योर एक्स इज 5। सिमिलरली अगर कोई आपसे कहे कि दिस टाइम माय एक्सपोनेंट इज सेम, एक्सपोनेंट सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि इसका मतलब मेरा बेस भी सेम होगा। जैसे लेट्स सी द एग्जांपल, 3 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5। नाउ यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा सेम है, तो ऑटोमेटिकली आप बोलोगे कि बेस भी सेम हो जाएगा। वाई? बिकॉज बीच में इक्वल का साइन है, सो यू विल से x इज इक्वल टू 3। Now let's move to some questions that are on page number 22 of your book Ganita Prakash. So first question इसमें क्या है? Which expression describes the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times? And the initial thickness is given to you, that is V. Question क्या बोल रहा है? एक sheet ले लो आप, उसकी thickness जो है वो V है, कितनी मोटी है वो V है, V units let's say। अगर आप उस शीट को 10 टाइम्स फोल्ड करोगे तो फाइनल थिकनेस कितनी हो जाएगी? आई विल गिव यू वन एग्जांपल। आप एक पेपर लो, उसको फोल्ड करो एकदम बीच से, लेट्स से उसकी थिकनेस पहले 1 सेंटीमीटर रही होगी, जब आप फोल्ड कर दोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, सो थिकनेस क्या हो जाएगी अब 2 सेंटीमीटर, बिकॉज ये डबल हो गया, सो योर थिकनेस इज नाउ इसके ऊपर ही आ जाएगा, सो योर थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर इंटू 2। देन आप इसको फर्दर और फोल्ड कर दो, सो अब इसकी थिकनेस 2 थी और इसके ऊपर आपने एक और बार फोल्ड कर दिया, तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज पहले आपके पास 1 था, 2 शीट्स थी हाफ हाफ, अब वो 2 शीट्स के ऊपर और 2 शीट्स आ जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा, सो नाउ योर थिकनेस इज 4, दैट मीन्स इंटू 2। आप अगेन इसको जब फोल्ड कर दोगे, इसका भी हाफ ले लोगे, सो ये आ जाएगा, जब आप यहाँ से इसको फोल्ड कर दोगे, सो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बेसिकली आपने क्या रियलाइज करा, हर एक फोल्ड पे मेरी थिकनेस डबल होते जा रही है। सो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी फोल्ड करने की बात आएगी आपकी थिकनेस इंटू 2 हो जाती है, जितने टाइम्स आप फोल्ड कर रहे हो। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि मेरी थिकनेस 1 सेंटीमीटर इनिशियली है और मैंने जैसे अपने फिगर में बताया 1 टाइम फोल्ड, सेकेंड टाइम फोल्ड एंड थर्ड टाइम फोल्ड, 3 टाइम्स फोल्ड के बाद थिकनेस कितनी हो गई? सो व्हाट यू रियलाइज दैट इनिशियल थिकनेस के 2 रेज टू द पावर 3 टाइम्स होगी। अगर मैं 4 टाइम्स में फोल्ड पूछती कि आपकी थिकनेस 4 टाइम्स फोल्ड के बाद थिकनेस कितनी है, सो आप बोलते 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, इनिशियल थिकनेस जो भी होगी इंटू 2 रेज टू द पावर n, जहाँ पे n होगा आपका नंबर ऑफ फोल्ड्स। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई थिकनेस पूछे आफ्टर n फोल्ड्स, यू कैन सिंपली राइट इनिशियल थिकनेस इनटू 2 रेज टू द पावर n। सो इन आवर केस इनिशियल थिकनेस वाज v, तो v तो आएगा। कितनी टाइम्स फोल्ड करें? 10 टाइम्स, बिकॉज हम फोल्ड कर रहे हैं और फोल्ड में हमारी शीट डबल होते जाती है, इंटू टू होती जाती है, सो 2 कितनी बार? 10 टाइम्स। So this is my answer. You can check. This is option number 5. क्लियर? तो बस आपको इतना याद रखना है, जो भी इनिशियल थिकनेस होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 रेज टू द पावर जितनी बार फोल्ड होगा, 2 फिक्स रहेगा, ये 2 चेंज नहीं होगा, बिकॉज थिकनेस जब भी पूछी जाए और फोल्डिंग के बेसिस पे पूछे जाए तो फोल्डिंग में पेपर हमेशा हम डबल होता जाता है। ओके, सो 2 विल बी फिक्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Express this number as a product of its prime factors. That means in short they are saying that you have to take the prime factorization of 32400. Okay, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, that if someone will say what is the prime factorization of 400, आपको एक चीज पता होनी चाहिए that the prime factorization of 10, that means 10 is 2 into 5,
Similarly, one more 0, prime factorization is 2 into 5. And what's the prime factorization of remaining number? That's 4. That's 2 into 2. So our final answer सीधा लिख सकते हो that 2 is coming 4 times and 5 is coming 2 times. तो जब भी आपको 0 दिखे आप automatically समझ लिया करो that एक 0 की prime factorization is 2 into 5 because 0 is representing 10. So यहाँ पे अगर मैं direct आपके लिए लिखूँ तो यहाँ पे एक 0 की prime factorization is 2 into 5. इस 0 की भी prime factorization is 2 into 5. And 3 to 4, if you know this thing that 3 to 4 किसका square है? 3 to 4 is a square of 18. और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 18 स्क्वायर, दैट मीन्स 18 होता है 2 इंटू 3 इंटू 3. दिस इज 18, तो इसका स्क्वायर. सो यू नो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन कि आपकी लास्ट में 2 कितनी बार आ गया? 2 1 1, दैट्स 4 टाइम्स. 3 4 times and 5 2 times. So आपको in a minute you know the prime factorization, but एक बार solve करके भी दिखा देते हैं. Because the last digit is even. जब भी last digit 0 2 4 6 8 होता है आप 2 से divide कर सकते हो. Dividing by 2 means you are taking simply half. This is 6. Again 2, that is 8 1 0 0. Again 2, just taking the half, 4050. Again 2 2025. नाउ द लास्ट डिजिट इज नॉट इवन, सो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. बस जब लास्ट डिजिट आपको 5 दिख रहा है तो आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो. और या फिर आप सम ऑफ डिजिट्स देके 2 + 5 इट्स 9, इट इज डिविजिबल बाय 3 2. तो आप 3 या 5 से किसी से भी कर लो. सो व्हेन यू विल डिवाइड बाय 5 व्हाट यू विल गेट? 4 is a 20. But now you're not using this 2 क्योंकि 5 की टेबल में 2 तो आता नहीं. यू नीड अ हेल्प ऑफ दिस 5 ऑल्सो. जब भी आप बीच में कभी भी कैरी करते हो तो आपको एक 0 लगाना होता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू. नाउ 25 is 5. Again you can divide by 5. That means 5 into 8 and then 1. Now I am continuing here. For 81, you can write 3 into 27, 3 into 9, 3 into 3, and 3 into 1. So that means 32400 is equal to 2 is coming 4 times, 5 is coming 2 times, and 3 is coming 4 times. सेम आंसर वी गेटिंग जो हमारा पहले आया था, डायरेक्ट जो हमने करा था. सो आपको पता होना चाहिए व्हेन वी हैव 1 0 तो डायरेक्टली आप एक 0 को रिप्लेस कर सकते हो 2 into 5 से. 2 zeros हैं तो 2 2s 2 5 और जो रिमेनिंग नॉन जीरो नंबर बच जाता है आप उसकी प्राइम फैक्टरेशन डायरेक्टली भी कर सकते हो. बिकॉज इफ इन एग्जाम इट विल कम फॉर 1 मार्कर तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन शो करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. They are saying what is -1 raised to the power 5? It is positive or negative? अगर आपको याद हो हमने लॉ डिस्कस करा था. I will show you that too. So here 8th law में हमारा क्या होता है? If we have minus sign and exponent is odd तो minus बाहर आ जाता है and a raised to the power odd you will write as it is. Like see this example, -6 into -6 into -6. You can simply write -6 raised to the power 3. माइनस साइन को आप डायरेक्टली बाहर लिख सकते हो and you are left with 6 raised to the power 3. 6 raised to the power 3 is 216. सिमिलरली अगर कोई बोलेगा -5 स्क्वायर तो इवन के केस में क्या होता है? एज यू नो माइनस जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है. वाई? -5 इंटू -5, आपको पता है माइनस माइनस तो प्लस होता है. सो जस्ट रिमूव दिस माइनस साइन. माइनस को आप सीधा हटा देते हो जब भी आपका इवन पावर होती है. एंड 5 स्क्वायर इज 25, 5 इंटू 5. तो आपको याद रखना है कि जब भी पावर इवन होगी रिमूव माइनस साइन, एंड जब भी पावर ऑड होगी माइनस साइन जंप करके ऐसे याद रखो बाहर आ जाता है ब्रैकेट से. ओके. So they are saying what is -1 raised to the power 5? We know that it is odd because the exponent is odd. आप डायरेक्टली माइनस को बाहर लिख लोगे एंड 1 raised to the power 5. और हमें पता है 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, इफ यू विल मल्टीप्लाई 1 10 टाइम्स 20 टाइम्स कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही आएगा. सो आंसर इज -1. सो दिस टाइम it's negative. They are saying is it positive or negative? It is negative. What about -1 raised to the power 56? Because 56 is even. और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी पावर इवन होती है माइनस साइन गायब हो जाता है. दैट मीन्स 1 की पावर 56 एंड 1 raised to the power एनी नंबर इज 1 only. So this is positive. Let's move to question 4. -2 raised to the power 4. Again जैसे ही आपको एक्सपोनेंट इवन दिखेगा जस्ट रिमूव माइनस साइन. अब माइनस को पहले ही हटा दो. सो हमारा आंसर होगा 2 raised to the power 4. एंड व्हाट इज 2 raised to the power 4? दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 2 4 times. 2 2s are 4. 4 times 2 is 8 and 8 times 2 is 16.
So this is equal to RHS, hence verified. Now let's move to first figure it out of this chapter. That's on page number 22 of your textbook Ganita Prakash. Question number 1. Express the following in exponential form. What is exponential form? Something raised to the power something. Like this, something raised to the power something. इस फॉर्म में हमें लिखना है तो लिखते हैं here 6 is multiplying with itself 4 times. 6 को हम खुद से 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे, जितनी बार कर रहे हैं वो ऊपर. Here we are multiplying y 2 times. So y नीचे 2 ऊपर. यहाँ पे हम b को 3 times खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So b raised to the power 3. Here we are multiplying 5 with itself 2 times और 7 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 times. बीच में as you can see sign is multiply, so we are writing multiply. Here we are multiplying 2 times and a also 2 times. Here we are multiplying a 3 times, c 4 times and d 1 time. That means a cube into c raised to the power 4 into d. आपको पता है दैट इन वेरिएबल इफ यू वांट आप मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाओ तो चलेगा. सो यू कैन राइट a क्यूब c4 d. बोथ आर सेम. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Express each of the following as a product of powers of their prime factors in exponential form. So इसमें आपको हर एक नंबर को कैसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. So for that you have to take the prime factorization. 648. So we'll divide by 2 because last is even. 3, 2, 4. Again 2 से divide करेंगे. 1, 6, 2. Again 2 से divide करेंगे. 81. And 81 is 3 raised to the power 4. तो आप 4 बार 3 से divide करोगे. 3 into 27, 3 into 9, 3 into 3 and 3 into 1. So आपका आंसर आया 2 raised to the power 2 कितनी बार आ रहा है 3 times. 3 is coming 4 times. This is the answer. So you have written as a product of powers. Yes. Let's move to next question 405. 405 को भी लिखते हैं जल्दी से. We can divide by 5. 5 into 8 is 40 and 5 into 1 is 5. Again 81 is 3 raised to the power 4. So you can write 3 4 times. आई थिंक यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद प्राइम फैक्टराइजेशन, इसीलिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ. 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4. नाउ 540 हम मेंटली भी कर सकते हैं दैट वी नो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 0 इज 2 इंटू 5 एंड 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप सोचो दैट इज 2 इंटू 27 और 27 क्या होता है 3 क्यूब. सो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 आएगा. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन टू. जैसे लास्ट में 0 दिखे आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. जस्ट टेक द हाफ. 270 अगेन 0 हाफ 135. नाउ यू कैन डिवाइड बाय 5. 5 into 2 is 10. 3 left, that's 7 sir. And 27 is 3 cube. 3 into 9, 3 into 3 and 3 into 1. So you can check your answer. 2 is coming 2 times, 5 is coming 1 time and 3 is coming 3 times. 3600 again 0 means 2 into 5. 0 means 2 into 5 and 36 is 6 square. That means 2 square into 3 square. So when you will see the final answer, you can write 2 is coming 4 times, 3 is coming 2 times and 5 is coming 2 times. Again, you can do this by taking prime factorization. So I will show you that. We'll divide by 2, that's half 1800. Again, we'll divide by 2, so we'll take half. Again you will divide by 2, you will take half. Again you will divide by 2, you will take half. Now 225. Last digit is 5, so you can divide by 5. 5 into 4 is 20. 2 left, 25 is 5. So. Then 5 into 9, then 3 square. By mistake, please don't write 9 because here it's a prime number. So you can't take any composite number here. You have to take all prime numbers. Let's see our answer. 2 is coming 4 times, 3 is coming 2 and 5 is coming 2. So it's correct. Let's move to next question. Question number 3. Write the numerical value of each of the following. So let's write that. 2 into 10 cube. I told you 10 cube means that 0 will come 3 times. You can say 1000. That is 2000. This time exponential form is given to us and we have to write answer. 7 square. What is 7 square? 7 को अगर हम 2 बार multiply करेंगे
एंड 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 स्क्वायर इज 49 and 2 cube. 2 into 2 4, 4 into 2 8. That means 49 into 8. You can solve. 9 into 8 is 72, 2 and 7 we are left with. 8 into 4 is 32, 32 plus 7 is 392. Let's move to next. 3 into 4 raised to the power 4. So you will write 3 into 4 raised to the power 4 when you will multiply 4 times. Just do that. You know 4 into 4 is 16. 16 into 4 is 64 and 64 into 4 is 256. So 3 into 256 and that means 768. This is your final answer. Let's move to fourth question. Minus raised to the power even. I told you whenever the exponent is even, minus sign you can remove. Similarly here also the exponent is even, तो आप minus sign remove कर सकते हो. That means you are left with 3 square into 5 square. आप चाहो तो यहाँ law भी use कर सकते हो. Exponent is same, so उसको बाहर लिख के normally नीचे numbers को multiply कर लो. What is 3 into 5? 15. 15 का square, that means 15 into 15, 225. 3 square, that is 9. And 10 raised to the power any number means उतने zero लगा दो. 4 है तो 4 zeros. That is 90,000. Last part, minus 2 raised to the power 5. Again, if the power is odd, minus sign बाहर आ जाता है. मतलब final sign will be minus and 2 raised to the power 5. जब आप 2 को 5 times multiply करोगे खुद से, like this, so that means it is 32. Here the exponent is even. Even में minus sign आपका remove हो जाता है, तो number you will write positive. Now 1 के बाद कितने zeros? जितनी आपके exponent है 6 zeros. 3, 4, 5, 6. You can say minus 32 and then 6 zeros. 32 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So by this we are done with our first figure it out. Now let's move to one story that's given on page number 23 of your textbook, The Stones That Shine. We have a king जिनकी 3 daughters हैं. 1, 2, 3. So we can say daughters are 3. Then हर एक daughter के पास 3 baskets. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So total number of baskets are 3 times 3, that is 9. हर एक basket में we have 3 silver keys. That means baskets are 9. हर एक basket में 3 keys है. That means 27. Then they are saying कि हर एक पास जो की है हर एक सिल्वर की से हम 3 बिग रूम्स ओपन कर सकते हैं. सो दैट मीन्स कितने रूम्स होंगे? कीज हमारे पास 27 है और हर की से हम 3 रूम्स ओपन कर सकते हैं. दैट मीन्स 81. आफ्टर दैट दे आर सेइंग कि हर रूम में टेबल है 1, 2, 3. मतलब हर एक रूम में 3 tables. If this is room, so again we have 3 tables. Here we have 3 tables and then again we have 3 tables. So we can divide like this. मतलब tables कितने होंगे हमारे पास? 81 rooms है and 3 tables. That means 243. After that they are saying कि हर एक table में 3 bright necklace है. आगे further हर एक table में 3 bright necklace है. So you can write number of necklace. 243 tables में 3, हर एक में 3 है. So 243 into 3, that means 729. आगे वो बोल रहे हैं हर एक necklace में 3 diamonds है. So number of diamonds, you can say हर एक नेकलेस में, सो नेकलेस था 729 और हर एक नेकलेस में 3 डायमंड्स है. दैट मीन टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स आर 729 into 3, दैट इज 2187. आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप ऐसे भी लिख सकते थे. दिस इज 3 raised to the power 1, this is 3 raised to the power 2, this is 3 raised to the power 3, because each times we are multiplying by 3. 3 raised to the power 5, 3 raised to the power 6, 3 raised to the power 7. Now find out the number of baskets. Okay, first thing they are saying find the number of baskets and rooms. So we have already calculated. Baskets are 3 square, that's 9, and rooms are 3 raised to the power 4, that's 81. How many rooms were all together? That we have written 81. The information can be visualized as shown below. इस story में जब daughter थी तो 3 raised to the power 1,
आगे गए डॉटर से, देन वी हैव बास्केट्स, तो 3 रेज टू द पावर 2, देन हर एक बास्केट में 3 कीज, तो 3 रेज टू द पावर 3। बस कंडीशन ये, हर एक चीज में सेम नंबर होना चाहिए जो इनिशियल था। लाइक डॉटर्स 3 थी, तो आगे बास्केट्स भी हर एक डॉटर के पास 3 होंगी, हर एक बास्केट में 3 कीज होंगी, हर एक कीज से 3 रूम्स ओपन होंगे, हर रूम में 3 टेबल्स है, लाइक दिस। सो इस केस में आप हर चीज को एक्सप्रेस कर सकते हो 3 रेज टू द पावर something. So let's move to questions based on this story. How many diamonds were there in total? Can we find out by just one multiplication using the products above? Yes. So they are saying that you have to tell diamonds. So diamonds we have already found here. Diamonds are 3 raised to the power 7. That is 2187. So you can write 3 raised to the power 7, 2187. Yes, we just multiplied 3 7 times. Then they are saying 3 7 can also be written as 3 square into 3 raised to the power 5. Can you reason out why? Just see this thing. Base is same. So we can write base once, and here 2 and 5 are different, but in between we have a multiply sign, so we can add the exponents. Answer is 3 raised to the power 7. We have used this law, a raised to the power m into a raised to the power n is a m plus n. आप normally भी check कर सकते हो. What is the meaning of 3 raised to the power 2? That 3 is coming 2 times. And what is the meaning of 3 raised to the power 5? That 3 is coming 5 times. And when we multiply both, that means you are multiplying 3 7 times when you will ask the product. So yes, आप दोनों ही केसेस में से कोई सा भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. राइट द प्रोडक्ट p raised to the power 4 into p raised to the power 6. हमने अभी भी समझा है, when your base is same आप उसे एक ही बार लिखते हो, एक्सपोनेंट्स को आप ऊपर लिख देते हो, बट मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट्स के पास जाके क्या बन जाता है, प्लस. सो आंसर इज p raised to the power 10. अगेन वी यूज द सेम लॉ here. Let's move to next question. Use this observation to compute 2 raised to the power 9, 5 raised to the power 7 and 4 raised to the power 6. What is 2 raised to the power 9? That means you're multiplying 2 9 times. So that is 5, 1, 2. Because 2 raised to the power 10 is 1024. So say divide by 2. अगर आपको 2 raised to the power 10 याद होता है, that it's 1024. So हम एक कम आ रहे हैं, so divide by 2 directly. 5 raised to the power 7. That means you are multiplying 5 7 times. When you will multiply 5 7 times, like this, 3, 4, 5, 6, 7. So you will get 7, 8, 1, 2, 5. Now they're saying 4 raised to the power 6. You are multiplying 4 6 times. If you want, you can do like this also. 4 into 4 into 4, that is 64. 4 into 4 into 4, that's 64. So we have to multiply 64 two times. And I told you the trick to find square of any number. क्या करते हैं, पहले 4 का स्क्वायर लिखते हैं 2 डिजिट्स में, then 6 का स्क्वायर लिखते हैं 2 डिजिट्स में, and then एक यूनिट डिजिट छोड़ के will multiply these three. 6 into 4, that's 24 into 2, 48. और आप ऐड कर दोगे, you will get the answer. 6, 9, this is 10, 4. So answer is 4096. If you don't know this trick, you can see my YouTube channel. I've already uploaded the trick there. So let's move to next question. Is 2 raised to the power 10 also equal to 2 raised to the power 5? Bracket raised to the power 2? Yes, I told you. Whenever we have a bracket and we have raised to the power exponent, you can simply multiply the exponents. So yes, they are equal. Which law we have used here? A raised to the power m raised to the power n is a m into n. But what is important? Bracket is important. That is already there. Let's move to last question based on this story. Write the following expression as a power of a power in at least two different ways. So they want answer like this, power of a power, like this. So let's write 8 raised to the power 6. अब देखो आप किसको ब्रेक कर सकते हो. कैन वी ब्रेक बेस, हम कर सकते हैं. 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब. सो 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 6. अब जैसे आपको ये मिल गया 3 रेज टू द पावर 6, आप इसको इंटरचेंज कर दो. यू कैन ऑल्सो राइट 2 रेज टू द पावर 6 रेज टू द पावर 3, क्योंकि इनका तो सेम ही आंसर आने वाला है. 2 रेज टू द पावर 18, 2 रेज टू द पावर 18. यस. नेक्स्ट देखते हैं 7. अब यहाँ पे हम 7 को ब्रेक नहीं कर सकते, तो वी हैव ओनली ऑप्शन दैट वी कैन ब्रेक एक्सपोनेंट, दैट इज 3 into 5. यस. अब जैसे आपने मल्टीप्लाई देखा, आप इसको क्या लिखोगे, 7 अंदर क्यूब लिख दो, बाहर 5 लिख दो, या फिर अंदर 5 लिख दो, बाहर 3 लिख दो.
आपको हमेशा आंसर चाहिए पावर ऑफ अ पावर, इसमें छोड़ना है आंसर। 9 रेज़ टू द पावर 14, हियर यू हैव बोथ ऑप्शन, या तो आप अंदर वाले को ब्रेक कर लो 3 स्क्वायर, या बाहर वाले को ब्रेक कर लो। तो एक आंसर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, दैट यू हैव टू जस्ट इंटरचेंज दिस। और आप और भी लिख सकते हो, आप 9 को एज इट इज रहने दो, आप 14 को ब्रेक कर लो, दैट इज 2 इंटू 7। सो आप या तो ऐसे लिख लो 2 इंटू 7, या आप ऐसे लिख लो, because at last you have to multiply this 7 2. Now let's move to last part, 5 raised to the power 8. We can write 8 as 2 into 4, 4 into 2. Yes, so these are they just told you that in two ways. So I have written in two ways. So let's move to next story of this chapter, magical pond. So in the middle of a beautiful magical pond lies a bright pink lotus. The number of lotuses doubles every day. हर दिन डबल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आज 1 है, कल 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 16, फिर 32 एंड सो ऑन। सो आफ्टर 30 डेज, 30 डेज बाद जो हमारा पॉन्ड है वो पूरा कवर हो गया लोटसेस से, पूरा पॉन्ड जितना उसमें लोटसेस आ सकते थे वो भर गया। सो किस दिन पॉन्ड हाफ फुल होगा, जरा ध्यान से सोचना। 30th डे वो फुल था, सो किस दिन वो हाफ रहा होगा? आपको पता है हर दिन डबल हो रहे हैं, सो हाफ कब रहा होगा? 29th डे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 30 डेज में वो फुल रहा, सो दे विल से कि 15 दिन में हाफ रहा होगा। नो, हेयर द रिलेशन इज हर दिन डबल हो रहा है। तो अगर कोई चीज आज 10 है तो कल ही वो 5 रही होगी। यस, सो 29th डेज में आपका पॉन्ड हाफ फुल रहा होगा। सो आंसर इज 29th डे। इवन दे आर आस्किंग राइट द नंबर ऑफ लोटसेस व्हेन द पॉन्ड वाज फुल। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता इनिशियली कितने लोटसेस थे, सो हम मान रहे लेट नंबर ऑफ लोटस इन बिगनिंग, ओके, लेट दैट बी n। अब आपको पता है हर दिन डबल हो रहा है। आई टोल्ड यू दैट थिंग, जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था थिकनेस वाला, कि कैसे हम फाइंड करते हैं। n इंटू इनिशियल इंटू डबल हो रहा है तो यू विल राइट 2 रेज टू द पावर, ट्रिपल होगा तो यू विल राइट 3 रेज टू द पावर। अगर वो बोलेगा 4 टाइम्स हो रहा है क्वाड्रपल तो यू विल राइट 4 रेज टू द पावर। नीचे वाला ये दिखाता है कितना स्पीड से वो बढ़ रहा है, लाइक हियर दिस इज डबल, तो हमने 2 नीचे लिखा है। ऊपर कितने दिन बाद, कितना वो आपसे मांग रहा है डेज, यहाँ पे हमारे केस में नंबर ऑफ डेज है, फोल्डिंग वाले में नंबर ऑफ फोल्ड्स था। सो नंबर ऑफ डेज फुली कवर्ड, कितने दिन में कवर हुआ है? 30 में, सो यू विल राइट n into 2 raised to the power 30। हाफ कब हुआ था? 29 डेज में, सो यू विल राइट n into 2 raised to the power 29। तो आपको याद रखना है n है इनिशियल, 2 क्योंकि डबल हो रहा है, एंड ऊपर आपके कितने डेज हैं। अब वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ लोटस इज ट्रिपल्स। अब इस बार ट्रिपल हो रहा है एवरी डे व्हेन बोथ द पॉन्ड्स हैड नो फ्लावर। शुरू में दोनों के पास फ्लावर नहीं थे। दमयंती ने क्या करा, प्लेस द लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। पहले वो डबलिंग पॉन्ड में लोटस रखती है 4 डेज के लिए। तो 4 डेज में आपके पास कितने फ्लावर्स हो जाएंगे? आपको पता है पहले दिन मेरे पास 1 था और डबल हो रहा है तो 2 रेज टू द पावर कितने दिन बाद? 4। तो 4 दिन बाद मेरे पास कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 4। You can say 16 flowers होंगे, lotuses you can say. She took all the lotus from there and put them in the tripling pond. अब उसने ये 2 raised to the power 4 जो थे आपके लोटस वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में डाल दिया। अब जो होगा ये 2 रेज़ टू द मतलब इनिशियली हमारे पास कितने 2 रेज़ टू द पावर 4 नाउ मैंने ट्रिपलिंग वाले पॉन्ड में डाल दिए कितने दिन के लिए? फॉर 4 मोर डेज। सो अब आपके पास लोटस कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर 4 दैट मीन्स 16, 3 रेज़ टू द पावर 4 दैट मीन्स 81। You can multiply this, although they didn't ask number, but अगर वो नंबर भी आपसे पूछ लें तो आप मल्टीप्लाई भी करके बता सकते हो that it is 1296। सो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि पहले हमारा इनिशियली आता है, फिर किस स्पीड से डबल हो रहा है, डबल या ट्रिपल वो बेस होता है, और कितने दिन बाद दैट्स योर एक्सपोनेंट। यहाँ हमारे पास इनिशियली 2 रेज टू द पावर 4 थे, बिकॉज ट्रिपलिंग पॉइंट था तो हमने नीचे 3 लिखा। कितने दिन तक रखा हमने? दैट इज योर एक्सपोनेंट 4। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What if Damayanti had changed the order in which she placed the flowers in the lakes? How many lotuses would be there? That means पहले दमयंती ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख रही है, और ट्रिपलिंग पॉन्ड में जब उसने रखा तो इनिशियली उसके पास बस एक लोटस था। कितने डेज के लिए रखा? 4 डेज के लिए। सो ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखा, दैट्स वाई बेस इज 3। कितने दिन के लिए रखा? 4 दिन। सो अब जो लोटस हुए उसके बाद उसने डबलिंग पॉन्ड में डाला,
और अगेन 4 डेज के लिए डाला, तो पहले उसके पास कितने थे डबलिंग पॉइंट में जब उसने डाला 3 raised to the power 4। व्हेन यू विल सॉल्व 1 into this, आपके पास कितने लोटस आ गए 3 raised to the power 4। कितने दिन के लिए डाला 4 डेज, पर कहाँ डाला डबलिंग में, सो बेस इज 2 क्योंकि डबल हो रहे 4 डेज। सो अगेन इफ यू विल सी केयरफुली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोटस 1296 ही होंगे। ओके, कैन दिस प्रोडक्ट बी एक्सप्रेस एज m रेज टू द पावर n। वो बोल रहा है इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आपने यहाँ पे ऐसे लिखा है लाइक a रेज टू द पावर b इंटू c रेज टू द पावर d, आपने डबल में लिखा है। क्या आप एक सिंगल बेस और सिंगल एक्सपोनेंट से भी इसे रिप्लेस कर सकते हो? यस, अगर आप ध्यान से देखो आपका आंसर था 3 raised to the power 4 इंटू 2 raised to the power 4। यहाँ आपका एक्सपोनेंट तो सेम है, आप उसे बाहर लिख लो, 3 into 2, that is 6 raised to the power 4। आंसर अगेन सेम आएगा 1296। सो यस वी कैन रिप्लेस। कैन पूछा है, यस। नाउ सिंप्लीफाई 10 raised to the power 4 अपॉन 5 raised to the power 4। आपको पता है वेन एवर योर एक्सपोनेंट इज सेम उसे बाहर लिख देते हैं और बेसिस को as it is, that means 10 divided by 5। if you will cut this you will get 2, 2 raised to the power 4, and 2 raised to the power 4 is 16. Although they wrote just write in exponential form, so you will leave here only 2 raised to the power 4. So that's all for today. Now we'll continue this chapter in next video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel Mathify with Meenakshi. Thank you everyone.